Good morning, all of you. Myself, Dharmen sir, and the most welcome in DSS online English class. Student, we have completed the chapter "The Best Christmas Present in the World," and now we have to study a poem which is a fable, "The Ant and the Cricket." Fable means what? Fable means a story which gives you some moral knowledge. That means moral stories is known as fables. So student, this is a poem which gives you a fable or the moral knowledge about the ancient. Ancient, that means 620 BC to 564 BC. This was the time when a ethical era was going on, and in that moment there was a poet whose name was Aesop, who used to write fable stories. We used to write fable story in Greek. मीन्स उस समय 620 से 554 तक 564 तक एक एरा चलता था जिसमें एक बहुत ही फेबल राइटर हुआ करते थे जिनका नाम था एशोप। एशोप जो थे वो ग्रीक राइटर थे जो फेबल कहानियाँ लिखा करते थे, और ये जो पोएम है उन्हीं फेबल कहानियों में से एक पिक की गई है, ली गई है। सो ये एक बहुत ही डीप इंस्पिरेशनल पोएम है that conveys you that if you don't do your duty on the proper time, then definitely future will fail you। कि अगर आप अपना काम समय से नहीं करते हो तो आपका भविष्य आपको फेल कर देगा। इसलिए दिस इज द पेंडेमिक, एंड इन दिस ड्यूरिंग दिस पेंडेमिक यू हैव टू डू योर वर्क एट अ प्रॉपर टाइम। आपको अपने प्रॉपर टाइम पे अपना वर्क करना है और करना चाहिए। दिस इज द मोरल ऑफ द फेबल, अदरवाइज यू गॉट नथिंग व्हेन द टाइम लेफ्ट ओवर। आपको कुछ भी नहीं मिलता जब समय बीत जाएगा। सो listen what the story is saying here. A fable is a story. What I have told you, that fable is a story, often with animals as character that conveys a moral. And such types of stories started with the animals and other characters that conveys a moral. This poem about ant and a cricket contain an idea for reaching significance, which is as true of a four-legged cricket as of a two-legged one. Surely you have seen a cricket that has two legs. That means here the poem conveys about the creature who is known as a cricket, and one is ant. Cricket has conveys here by the saying two legs and ant the four legs. So story is a true on the behalf of the morality, and this story conveys that you have to do your work on a proper time. So let's discuss the poem. A silly young cricket. This poem belongs to a silly young cricket. Silly young cricket. Why the cricket is saying here by calling silly? Because he was a rudderless. He was idle. एक आलसी पर्सन नहीं कह सकते, क्रीचर था क्रिकेट, इसीलिए उसको सिली कहा गया है। अकस्टम टू सिंग एंड ही यूज टू सिंग, उसे गाना गाने की आदत थी, मतलब वो हमेशा गाता रहता था। थ्रू द वार्म सनी मंथ्स ऑफ गे समर एंड स्प्रिंग, दैट मीन्स होल ईयर, फ्रॉम द वार्म सनी मंथ्स ऑफ गे समर एंड स्प्रिंग ही यूज टू सिंग। अकस्टम टू सिंग, वह गाना गाता रहता था। His cupboard was empty and winter was come, and began to complain when he found that at home his cupboard was empty. That means वो क्या करता है, कंप्लेन करने लगता है जब वो पाता है कि जब विंटर सीजन आता है तो उसका कपबोर्ड हियर मीन्स द फूड स्टोर, जो फूड स्टोर है वो खाली रहता है, तो वो कंप्लेन करता है, शिकायत करता है। Not a crumb to be found, and when he want to eat something, then found there was not a crumb. Crumb here means a
grain, a part of a grain. And in the ancient time, crumb is used the part of a bread. मतलब यहाँ पर सेंस इसका है कि खाने की थोड़ी सी भी मात्रा, अनाज की थोड़ा सा भाग. बट रियल इसका मीन्स होता है जैसे रोटी का छोटा सा टुकड़ा, ब्रेड का छोटा सा टुकड़ा होता है, उसको क्रम्ब ऑफ ब्रेड कहते हैं, ब्रेड का छोटा सा टुकड़ा. तो ओवरऑल कहने का सेंस ये है कि ही हैज़ नॉट अ क्रम्ब ऑफ ब्रेड और द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ अ ग्रेन. मतलब उसके पास खाने को कुछ नहीं है. ऑन द स्नो कवर्ड ग्राउंड and due to the winter whole the surface was covered with a snow. मतलब चूंकि विंटर का टाइम था, विंटर का टाइम होने की वजह से पूरा का पूरा जो सरफेस एरिया था या ग्राउंड कह सकते हो, ग्राउंड जो है पूरा का पूरा स्नो से ढका हुआ था. नॉट अ फ्लावर कुड ही सी, नॉट अ लीफ ऑन अ ट्री. देयर वाज नॉट अ फ्लावर लेफ्ट ऑन द ट्री, नॉट अ लीफ ऑन द ट्री दैट ही कुड ईट. पेड़ पे अब कुछ भी बचा नहीं था जिसको वो खा सके. सब कुछ ओवरऑल कहने का मतलब है कि वो काफ़ी ट्रबलसम कंडीशन में था. व्हाट विल कम बिकम सेज क्रिकेट ऑफ मी. देन क्रिकेट सेड टू हिमसेल्फ दैट व्हाट विल बिकम, अब क्या होगा मेरा. क्रिकेट क्या कहता है, कहता है अब क्या होगा मेरा. एट लास्ट बाय स्टारवेशन एंड फेमाइन मेड बोल्ड. एंड एट लास्ट when he got at the stage of starvation, he tried to make a bold effort and to be bold, and all dripping with wet and all trembling with cold, away to set off to misery aunt. And वो क्या हो गया था, he was completely dipped with the water, and at the stage of starvation he went to the aunt. मतलब वो भीग जाता है, वो काफ़ी प्रॉब्लम में आ जाता है, वो ठंड से कांपने लगता है, उसे खाने के पास कुछ नहीं है. देन वो माइजरली आंट के पास जाता है. हियर वन थिंग रिमेंबर दैट वाई द आंट कॉल्ड हियर माइजरली. मतलब आंट को नेचुरली माइजर बोला गया, यहाँ पे कंजूस बोला गया. तो वो उस कंजूस आंट के पास जाता है. To see if he keep him alive, he would grant him shelter from rain. And उसे ऐसा उम्मीद होता है कि he will give him a shelter and give him some part of a bread or part of a grain that he could survive himself in this during disaster. मतलब इस डिजास्टर में अपने आप को किसी तरह वो सेव कर सके, बचा सके, इसलिए वो वहाँ पे जाता है. रैन से अपने आप को सेव कर सके, इसलिए वो वहाँ जाता है. And a month of a grain he wished only to borrow, he had replied tomorrow. And during this disaster he want to borrow something so that he could might himself rescue from this bitter condition. मतलब इस bitter condition से अपने आप को किसी तरह वो बचा सके, इसके लिए वो उसके पास जाता है. If not he must die of starvation and sorrow. And he also think that if aunt wouldn't help him, then surely he would die with hunger. वह निश्चित ही भूख से मर जाएगा अगर आंट उसकी मदद नहीं करती है तो. Says the aunt to the cricket. Then when he says to the aunt, aunt gave him a replies, or aunt says him. aunt उससे कहती है, क्या कहती है, I am your servant and friend. He also said that I am well wisher and I am a friend of you. मैं तुम्हारी वेल विशर हूँ, तुम्हारी फ्रेंड हूँ, तुम्हारे लिए वर्क भी करती हूँ. बट वी आंट नेवर बोरो एंड आंट नेवर लैंड. बट वन थिंग इज सैड फॉर अस दैट, लेकिन एक चीज़ हमारे लिए कही गई है कि आंट जो होते हैं ना, वो कोई चीज़ ना तो उधार लेते हैं ना उधार देते हैं. बट टेल मी डियर क्रिकेट, डिड यू ले नथिंग बाय व्हेन द वेदर वॉज वार्म. बट टेल मी डियर क्रिकेट, लेकिन वो फिर क्या कहती है, डियर क्रिकेट मुझे बताओ, डिड यू ले नथिंग बाय. ले नथिंग बाय हियर मीन्स लेफ्ट नथिंग और सेव्ड नथिंग. दैट मीन्स वो कहती है कि जब वार्म मौसम, वेदर वार्म था, तब तुमने कुछ नहीं बचाया अपने लिए. कोथ द क्रिकेट, कोथ हियर मीन्स सेड द क्रिकेट not.
नॉट आई। तो क्रिकेट क्या जवाब देता है, कहता है नो, आई हैडंट सेव्ड नथिंग फॉर आवर अगेंस्ट द रेनी सीजन, मतलब मैंने अपने बुरे दिनों के लिए कुछ भी नहीं बचा के रखा। माई हार्ट वॉज सो लाइट दैट आई सिंग डे एंड नाइट, एंड ड्यूरिंग दोज डेज आई यूज टू सिंग इन अ हैप्पी मूड डे एंड नाइट। उन दिनों में बहुत खुश रहता था और दिन रात गाना गाता रहता था। फॉर ऑल नेचर लुक गे, और मुझे पूरा का पूरा जो नेचर होता था वो काफ़ी हैप्पी लगता था, काफ़ी अच्छा लगता था। यू सैंग सर यू से, यू सैंग सर यू से, मतलब देन आंट क्या कहती, सर आपने कहा कि आप गाना गाते रहते थे। गो देन सेज द आंट एंड डांस द विंटर्स वे, तो फिर जाइए विंटर्स में क्या कीजिए, आप डांस कीजिए। दिस इज़ द क्लासिकल आंसर। दैट मीन्स क्या होगा कि जब आप सही समय पे रहते आप सही काम नहीं करोगे, तो फिर जब एग्जैक्ट टाइम आएगा उस समय आप जब किसी से हेल्प मांगोगे तो लोग यही कहेंगे कि जब समय था तो आपने अपना वर्क नहीं किया, देन वाई आर यू कमिंग हियर नाउ, जस्ट गो एंड डांस। दिस इज द क्लासिक आंसर हियर मीन्स यू कैन से दैट दिस इज द आयरनी। एक व्यंग है, सटायर है, ये सटायर व्यंग करते हैं कि जाइए फिर डांस कीजिए अब। दस एंडिंग द हैस्टली लिफ्टेड द wicket and out of the door turn of the poor little cricket. Folk call this fable, I will warrant it true. Then ending and thus ending, और इस तरह से इस पोयम की एंड हो जाती है। He hastily lifted the wicket and thus ending the hastily and lifted the wicket. That's thus by this way the story or the poem बिकम्स एंड, मतलब इस तरह से स्टोरी ख़त्म होती है। एंड राइटर जो मीन्स एसोप हैं, जो कि एक मोरल राइटर हैं, सेज दैट ही हैज़ली लिफ्टेड द विकेट एंड आउट ऑफ द डोर टर्न द पुअर लिटिल क्रिकेट, एंड देन ही सेट हिम आउट ऑफ द डोर एंड सेट द डोर, मतलब वो उसे घर से बाहर निकाल के दरवाज़ा बंद कर देती है आंट। फोक कॉल दिस अ फेबल, लोग इसको फेबल कहते हैं। आगे एसोप कहना क्या चाहते हैं, पोएट what the poet want to give us a message that folk call this is a fable। लोग क्या कहते हैं, लोग कहते हैं ना कि ये फेबल है। आई विल warrant it true, लेकिन मैं ये मानूंगा कि दिस इज ट्रू, दिस इज ट्रू। सम क्रिकेट हैव 4 legs एंड सम हैव 2। आगे अशोक ये कहना चाहते हैं कि कुछ जो क्रिकेट्स होते हैं उनके 4 पैर होते हैं, फॉर एग्जाम्पल द रियल क्रीचर बट सम हैव 2, बट लेकिन सम कुछ जो क्रिकेट होते हैं इनके 2 पैर होते हैं। एंड हियर द 2 legs रेफर फॉर द ह्यूमन बींग्स, फॉर व्हाट, फॉर द ह्यूमन बींग्स। सो स्टूडेंट you have to think that what kinds of message author want to convey through this poem। इस पोएम के द्वारा वो कौन सा मैसेज कन्वे करना चाहते हैं, तो ही want to convey a message that we should be laborious, we should be hard worker, we should be self confident, not should be dependent। हमें डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए, हमें आत्मनिर्भर होना चाहिए, इंडिपेंडेंट होना चाहिए। सो आई होप सो दैट व्हाट द पोएट वांट टू कन्वे इन दिस चैप्टर, you got the complete message and you have understand the fable or the morality of the poem. So if you have any doubt, then you can call me. Okay, thank you.